Hello friends, how are you? Welcome to Code Careers YouTube channel. So as you know, we are working on currently Barney Search T, and in this topic I have worked on means we have actually worked on Barney BST. What is BST? And the insertion in BST, deletion BST, how to add element, create, delete, insert. We have worked on, and sometimes we have also discussed about little bit what how to balance any binary search tree. Why we need to balance actually, this also I have explained little bit. Not much we have discussed on that. Just like because of binary tree, actually if you are going to binary create binary search tree, I'm giving you one example. Just you have an array of 1, 2, 3 sorted array. Okay? 4, 5, and 6. This array you if you have, and if you have to create any BST using this array, so how will you do? So simply you will create first node with value 1 and then insert second node. How it will be inserted? Second node inserted because second value is greater than this current node. So it will be inserted right side. Okay. And then third you will insert, and third comes to root. It will compare, it is greater than means going to right, and then compare greater than, so because right side is null, so value will be inserted here only. Then again you wanted to insert 4, so if you see here, all the values inserted in right child only, this way, and 6 this way. You wanted to actually create a binary search tree, but this is doesn't look like this is binary search tree. It looks like simple linked list type only. So what is the what is the benefit here? There is no benefit of why we need actually binary search tree. Binary search tree we created, or I can say we created, or we can say in our means requirement we used the binary search because of we wanted to take some benefit of binary search tree. Binary search tree benefits, what are the benefits? I yeah, some of the benefits I am telling you again. Just like for searching, if you wanted to search any element from the binary search tree, so it will take how much time? Order of actually you have to traverse only height of the tree only. So if height is lesser, means time complexity also will be lesser only for searching. So you have to always you have to minimize the height of the tree. You have to try to as much as possible to minimize the binary search tree. Then only you can take benefit of binary search tree. Otherwise, this way you can't take anything, any benefit. ओके सो फॉर सर्चिंग फॉर सर्च के लिए भी हमें क्या है, सर्च कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, का बेनिफिट के लिए हमने ये क्या किया था, ऑर्डर ऑफ एच। और हाइट क्या होती है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री? अगर आपने प्रॉपरली बैलेंस ट्री बनाई है, ठीक है, देन हाइट विल बी लॉग ऑफ एन ओनली. सो इट मीन्स फॉर सर्च what is the complexity, log of n only. If you are going to delete any element, then again you have to default delete. You have to surely you have to search only first. Then only you will delete. Okay. तो डिलीट के लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी? लेट्स से यू एक्चुअली लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, याद करने के लिए वैसे भी याद हमें भी नहीं रहता है शायद, आपको भले ही रहे, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक, याद करना कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ रट्टा हो, बट आप 1 मिनट के अंदर दिमाग में सोच करके उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर आपको लॉजिक पता है तो। जैसे कि हमें सर्च का पता है कि लाइव सर्च हमारा किस तरीके से चलता है, रूट टू लीव नोड, जो पाथ है रूट टू लीव जाता है हमारा पाथ, ठीक।
कोई एक सिंगल पाथ में आपका सर्च मिल जाएगा, ठीक है, चाहे ये पाथ हो, ये पाथ हो, या सीधा इधर हो या फिर इधर हो, ठीक। तो इसी वजह से हम जानते हैं, क्योंकि ये किसी एक पाथ पे ही जाता है, इट मीन्स आई हैव टू ट्रेवर्स ओनली हाइट ऑफ द ट्री ओनली, ठीक है। But for the deletion also, I have to first find out. First, I have to find out. Let's say you are going to delete this node, so you will find out. You will get only first second time only, second recursive call only. You will get this one. Okay, but after getting this one, you have to find out either predecessor or successor. So to find out predecessor will exist in the right or in the left in the left subtree rightmost element or right subtree leftmost element. You will get as a predecessor और successor, ठीक है। तो उसमें भी उतना ही चलना पड़ेगा, इसके बाद में आप उसको मैंने डिलीट कर दोगे, तो उस तब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, क्योंकि आप दो बार में चल रहे हो, बट चलना आपको रूट टू लीफ ही है, ठीक है। दैट्स वाई फॉर डिलीशन आल्सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लॉग एन। For searching, time complexity, log n. For deletion, time complexity, the same only. For insertion, also time complexity, log n only. ठीक है। इंसर्शन के लिए भी क्यों, मोस्ट ऑफ द केस नहीं, ऑलवेज आई कैन से ऑलवेज न्यू एलिमेंट विल बी इंसर्टेड एट लीफ ओनली, एट द लीफ नोड ओनली। तो इसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, उस सर्चिंग की मतलब इंसर्शन की भी क्या होगी, डिलीशन हो गया, डिलीट हो गया, और ये इंसर्ट हो गया। इंसर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो भी लॉग एन ही होगी, लगभग लगभग क्या लॉग एन ही होगी, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसका लिमिट कह सकते हो कि मैक्सिमम लॉग इन ही होगी। कब होगी, जब आपका ट्री बैलेंस्ड होगी, तब एट मोस्ट मीन थीटा ऑफ लॉग इन कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ लॉग इन। क्यों, क्योंकि लॉग इन से ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपकी ट्री बैलेंस नहीं है, अगर केवल बैलेंस मायने अगर बीएसटी है ओनली, बैलेंस नहीं है तो, ठीक है। और बेनिफिट क्या हो सकते हैं, आप इफ यू हैव टू let's say you have to find out minimum, how to get minimum in the binary search tree. If it is balanced, you can get minimum in theta of log n। कैसे, क्योंकि मिनिमम आपका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मिनिमम होगा, राइट मोस्ट आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। मिनिमम पता कर लिया। इफ यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम, देन ओनली कॉम्प्लेक्सिटी विल बी maximum log n, that's why theta I'm using here. So here theta of log n only, complexity minimum maximum हो गया। If you find out the ceiling of floor, just like floor, you have to find out floor of any element. Just you have to you have to search, like you wanted to search 5, but 5 doesn't exist. Floor means you were searching actually five element, either it exists or not, but 5 doesn't exist. Let's say 5 doesn't exist here, okay, 5 doesn't exist, but then you can find out floor means either 5 or less than 5, but that lesser value should be larger from all smaller। ओके, कैसे, एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ फ्लोर का मतलब क्या होता है। हालांकि टॉपिक मैंने कोई दूसरा शुरुआत किया था, बट मैं पहुंच गया कहीं दूसरे पे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस तरीके से आगे बताऊंगा, बट चलो कोई नहीं। तो फ्लोर का मीन्स क्या था, लेट से आपको 5 सर्च करना है, ठीक। हमारे पास कोई एरे है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं आगे चल के सॉल्व करूंगा इसको भी। तो लेट से आपको 5 सर्च करना था, बट 5 एरे है ये एक तरीके से, ठीक है, जस्ट दिस इज एन एरे, एंड यू हैव सम एलिमेंट लाइक you have some 1 6, okay, 9 2 5 and 4, है ना। इस तरीके से एलिमेंट है, अभी ज़्यादा नहीं लेंगे।
So if you asked to find out the floor for 5, so what is the floor here? Means all in all means previous element from all of them you have to get either 5 exist before 5, or any value that is any value that is फ्लोर मीन्स ओके फ्लोर आई थिंक मैं भी कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या नहीं फ्लोर हाँ तो एनी वैल्यू दैट इज लेसर आइदर इक्वल टू 5 और लेसर देन 5 लेस देन 5 बट वो जो लेस देन 5 होगी लेकिन वो जो लेसर वैल्यू होगी स्मॉल वैल्यू जो होगी वो सभी लेफ्ट में जितने भी एग्जिस्ट होंगे उन सबसे तो बड़ी होगी ठीक ऐसी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है लेट्स से आपके यहाँ पे भी आपके पास में 3 होता है ठीक तो आपके 5 से छोटे एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं एक भी है दो है 3 है यू हैव 3 एलिमेंट लेसर फ्रॉम 5 बट व्हाट विल इज द फ्लोर हियर फ्लोर मीन्स नॉट वन neither 1 nor 2 it will be 3 only why this is lesser from 5 but this is lesser from 5 and greater from all of them just from greater from 1 greater from 2 सो ये भी आप बहुत इजीली इससे फाइंड आउट कर सकते हो बीएसटी से कैसे करेंगे आगे चल के बताएंगे ठीक और एक चीज आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चाहे तो मैं अभी कवर कर देता हूँ बट कोड नहीं करूंगा आज मेरा मन नहीं है कोड करने का एक्चुअली तो इसी प्रकार आप सीलिंग भी पता कर सकते हो ठीक सी आई एल और सी ई आई एल कन्फर्म नहीं हो रहा मुझे ये तो नहीं होगा आई थिंक ठीक कुछ भी हो आप कंफर्म कर लेना जो सीलिंग ऑफ 5 अगर 5 का सीलिंग पूछा जाता है ठीक तो 5 का सीलिंग अगर पूछा जाता है तो क्या होगा मीन्स 5 से तो बड़ा हो बट स्मॉलर फ्रॉम ऑल ऑफ देम जितने भी 5 से बड़े एलिमेंट हैं लेफ्ट साइड में उन सभी से वो छोटा हो अब कितने बड़े इससे 5 से बड़े एलिमेंट हैं लेफ्ट साइड में 6 है और 9 है बट इन सभी में छोटा कौन सा है 6 है तो यही इसका एक तरीके सील होगा सीलिंग वैल्यू होगी आंसर क्या आएगा 6 तो ए बी इजिली इसमें फाइंड आउट किया जा सकता है सीलिंग और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्स इसकी मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा क्योंकि कोड अभी इसका मुझे करना है और रट्टा मैंने बताया ना रट्टा मार नहीं मारते नहीं और मुझे याद भी नहीं एक्चुअली कंफर्म अभी और हम उसको जब कोड करेंगे तो कोड करते वक्त हम कंफर्म करके बता देंगे ठीक है क्योंकि अभी मुझे सारा कुछ नोट डालने पड़ेंगे तब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा तो ये भी मतलब अप्रॉक्स लॉगिन के आसपास ही रहेगा ज़्यादा नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि ये मान के चलो अच्छा चलो बना ही देते हैं ट्री लेट्स से यू हैव सम ट्री कैसे एलिमेंट इंसर्ट करें वही है कि टाइम लग जाएगा एग्जाम्पल लिखने के लिए हम्म, 2 1 4 9 7 10 ठीक अब आपको फाइंड आउट करना है लेट से यू हैव टू फाइंड आउट 6 अगर हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि 6 एग्जिस्ट करता है लेट से यू हैव टू फाइंड आउट 5 बट 5 डजंट एग्जिस्ट हियर ओके सो इट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है फ्लोर ऑफ 5 5 एक्चुअली यहाँ पे मिल एग्जिस्ट नहीं करता 5 डजंट एग्जिस्ट तो आप यहाँ पे कंपेयर करो 5 एग्जिस्ट करता है नहीं करता इट डजंट एग्जिस्ट इट मीन्स यू हैव टू चेक आइदर इज 5 इज लेसर फ्रॉम दिस और ग्रेटर इट इज लेसर तो आप यहाँ पे आ जाओगे तो लेफ्ट साइड में आप जाओगे लेफ्ट साइड में यू विल चेक अगेन आइदर 5 इज इक्वल टू 2 और नॉट बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू देन यू विल चेक आइदर 5 इज लेसर और ग्रेटर
तो जैसे ही आप चेक करोगे 5 लेसर नहीं है, ग्रेटर है, 2 से तो बड़ा है, इट मीन्स ये रिजल्ट में आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा रिजल्ट में? रिजल्ट में 2 आ गया। बट एक्चुअली जो रिजल्ट आपका होगा RES, रिजल्ट में आपका 2 आ गया। बट अगेन आप फिर से चेक करोगे, लेट से आपके पास में ऑलरेडी रिजल्ट में कुछ था, RES रिजल्ट में आपके पास में क्योंकि आप फ्लोर निकाल रहे थे तो आपके पास में मिनिमम मैक्सिमम निकालना है ना आपको, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 रख लेते हैं, ठीक। तो आपने आपके पास में ये था, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इस तरीके से निकालोगे, RES इज इक्वल टू मैक्स ऑफ RES कॉमा रूट डॉट डाटा। ये फार्मूला आप यूज करोगे, क्यों? क्योंकि आपको लेस कब, ये फार्मूला कब यूज होगा? वो राइट साइड में होगा। कब होगा? चलो इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि आपको पता चल गया है, ठीक। जब आप ये कंडीशन लगाओगे, इफ दिस करंट सर्च एलिमेंट क्या है, जस्ट से यू दैट वेरिएबल इज डाटा ओनली, इफ डाटा इज ग्रेटर देन किससे, रूट डॉट डाटा, then you have to apply this one and make a recursive call here। रिकर्सिव कॉल भी आपको करना है ना, तो आप यहाँ पे इसके अंदर, इसी के अंदर रिकर्सिव कॉल भी कर दोगे, ठीक है। ये रिकर्सिव कॉल किसके लिए? राइट के लिए, आर डॉट राइट, जो भी है रूट डॉट राइट। तो इस तरीके से आप निकाल, इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी लॉग नहीं रहेगी, कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ पे इसके राइट में आएगा, ये भी लेसर है फ्रॉम 5, it means this variable in the beginning variable, this variable you can take as a global variable, then okay, then it will be easy to compare। so RES in the beginning में हमारे पास क्या था, 0 था, but for this at this subtree you replace value by 2। सो अब अगेन ये 2 है और ये रूट डेटा 4 है, तो इसमें से मैक्सिमम कौन है, 4 है, तो रिजल्ट में 4 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार आप सीलिंग निकाल सकते हो, अपना दिमाग लगा लेना थोड़ा। तो काफ़ी सारे देखो कितने ऑपरेशन यहाँ पे कर लिए। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनरी सर्च ट्री। और बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री तभी बेटर है जब आप उसको बैलेंस करोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इतना सारा टाइम दिया है आपको। और क्या बेनिफिट इसके हो सकते हैं? अदर बेनिफिट्स आई डोंट रिमेम्बर, बट धीरे धीरे करके अभी काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, तो अगर याद आता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, तो यूजेज बता रहा हूँ कि बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री के क्या यूजेज हैं। सो what is balance, so my actual lecture was to tell you what is a self balancing binary, self, okay, नया नोट पर ले लेता हूँ, or I can remove this thing, okay, because I can reuse this thing to make it balanced। My topic is actually सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी, ठीक है। व्हाट इज सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी, हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। बाइनरी ट्री नहीं, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक। सर्च ट्री, BST। सो बाइनरी सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री, एक्चुअली it is a BST for that height difference height difference between left subtree and right subtree इज लेस और इक्वल टू 1। मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर से मैं एक बार दोहराऊं कि जो लेफ्ट सब ट्री सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी क्या है, दिस इज अ बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री ओनली, बट एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बाइनरी सर्च ट्री में चेक लगा अप्लाई अगर कर देते हो कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ठीक, माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, इसका एब्सोल्यूट जो निकालोगे, एबीएस। एबीएस क्यों में लगाना पड़ता है?
एवीएस इसके लिए बिकॉज क्योंकि लेफ्ट में भी बड़ी हाइट, ज़्यादा हाइट हो सकती है, राइट में भी ज़्यादा। अगर लेफ्ट में ज़्यादा हो जाएगी तो निगेटिव आ जाएगा, राइट में हाइट ज़्यादा होगी तो नहीं, राइट में अगर हाइट ज़्यादा होगी तो निगेटिव आ जाएगा, लेफ्ट में हाइट ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने के लिए एब्सोल्यूट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेस और इक्वल टू वन होना होगा, ठीक। देन दिस बाइनरी सर्च ट्री कॉल्ड सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। ये आप फार्मूला सिंपल हो, इसके बारे में बता भी चुका हूँ वाले आगे। और शायद मैंने इसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, ये हाउ टू बैलेंस द नहीं, टू चेक आइदर गिवन ट्री इज अ बैलेंस बाइनरी सर्च और ना, बाइनरी सर्च के लिए नहीं किया था, बाइनरी ट्री के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया था मैंने। आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने बताया था हाउ टू चेक आइदर गिवन ट्री इज बैलेंस्ड और नॉट, बाइनरी ट्री इज बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है। सेम आप बाइनरी षष्ठी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जितने भी आपको ट्रेवर्जल मैंने बताए वो सारे बाइनरी ट्री के जो ट्रेवर्जल हैं, बाइनरी ट्री के लिए जो ट्रेवर्जल मैंने बताए थे वो सारे ट्रेवर्जल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसमें? बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री के ट्रेवलर वो यूज कर सकते हो, बट बाइनरी सर्च ट्री के सारे नोड पे ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी ऑपरेशन में आपको कोई पूरी बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ज़्यादा प्री ऑर्डर ट्रेवर्जल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल, ये सारे ट्रेवर्जल की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर आपको सॉर्ट करना है तो उसके लिए श्योर है कि आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्जल की जरूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए कहा गया है कि आप वो सारे के सारे ट्रेवर्जल्स आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो so tell me what is self-balancing binary? Self-balancing binary is a binary search tree. Self-balancing binary search tree is a binary search tree only, but add on another property. It should follow another property. What is property? Here, difference between left subtree height, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ, कई प्रकार से कह सकते हो, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री should be less or equal to 1, then only it is called self balancing binary search tree, ठीक है। ये वाला फार्मूला याद रखो सिंपली। अब इसको शॉर्टकट में जो भी बनाना चाहो कोई अपने हिसाब से बना सकते हो। अब ये कितने प्रकार की हो सकती है सेल्फ बैलेंसिंग बैलेंसिंग, कितने तरीके से हम बना सकते हैं, ये भी कह सकते हो कि बाइनरी सर्च हम सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च जो है, क्योंकि इसको मैं सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च मीन्स ये अब सेल्फ अपने आप से क्या करेगी, बैलेंस करेगी कंटिन्यूसली व्हाइल यू आर एडिंग एनी एलिमेंट और डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री, इट विल ऑटोमेटिकली बैलेंस itself, okay. That's why it is called self balancing binary search tree. Why it is called? While you are adding any element, if something unbalanced, then it will balance automatically. And if while deleting any element from the binary search tree, if something unbalanced, if any subtree getting unbalanced, it will balance automatically. That's why it is called self balancing binary search tree. तो ये जो सेल्फ बैलेंसिंग binary search tree है कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, ठीक, टाइप कुछ नहीं है। तो ये किस कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अप्लाई करके हम बाइनरी सर्च ट्री को सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। उसमें से सबसे पहले आप आता है एवीएल ट्री, ठीक। एवीएल ट्री के थ्रू भी आप बाइनरी सर्च ट्री को सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो। एविल ट्री के कॉन्सेप्ट को, ये एक एक्चुअली अलगू है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट है जिसके रूल है, ये इट हैज सम रूल प्रिंसिपल्स, ठीक। एविल ट्री हैव सम ओन प्रिंसिपल्स, अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स यू कैन मेक अ बाइनरी सर्च ट्री एज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री, ठीक है। इसके कुछ रूल अगर फॉलो करोगे, इसी प्रकार से रेड ब्लैक ट्री है, रेड ब्लैक ट्री, इस रेड ब्लैक ट्री में भी, रेड ब्लैक ट्री भी एक तरीके से क्या है, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। इफ यू आर अप्लाइंग दीज रूल्स टू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री, देन दैट बाइनरी सर्च ट्री विल बी सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। समझ गए कि नहीं? अगर आप रेड ब्लैक ट्री के रूल्स को, अल्गोस को, कॉन्सेप्ट्स को, ठीक,
अलगों को अप्लाई करोगे किसके लिए? बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करने के, बीएसटी को इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर आप रेड ब्लैक ट्री के रूल्स को फॉलो करोगे तो आपकी बाइनरी सर्च ट्री जो होगी वो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होगी। क्या होगी? सेल्फ बैलेंसिंग, सेल्फ बीएसटी होगी, बैलेंस्ड, सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। ठीक, सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री हो जाएगी, SBBST। ठीक। कब होगी? अगर आप चाहें तो ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो। एक और होता है उसका क्या नाम है, हम्म, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एवियल ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया। अब देखो मुझे दिमाग पे इसमें नहीं आ रहा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं सारा कुछ बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी कुछ रखते हैं। हालांकि उसका ज़्यादा यूज भी नहीं होता, देखो इस एवियल ट्री का भी उतना ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक, इसके भी अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे ज़्यादा यूज होता है रेड ब्लैक टी। ये परफेक्ट एक तरीके से है, एक तरीके से कह सकते हो सेल्फ बैलेंसिंग गार्निश टी। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप जावा में जाओगे, जावा के जो कलेक्शंस में जाओगे, आपने देखा होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ ट्री सेट। ट्री सेट में भी आप देखोगे तो ट्री सेट भी रेड ब्लैक ट्री को ही इम्प्लीमेंट करता है। तो आपको मैं कोडिंग नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि एवियल ट्री की भी नहीं बताऊंगा और इसका ये रेड ब्लैक ट्री का भी नहीं। कोडिंग कोई इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है मोस्टली, क्योंकि ऑलरेडी, हालांकि आपको अगर कर सकते हो तो हम लॉजिक आपको कंसेप्ट सारे बता देंगे, बट कोड नहीं करेंगे इसका। ठीक है। और ये जो है, इसको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को आता है, जैसे कि अभी मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं आपको, जैसे सीलिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम हाउ टू गेट मिनिमम, हाउ टू गेट मैक्सिमम, हाउ टू गेट सीलिंग फ्लोर, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। एक और प्रॉब्लम आती है सीलिंग फ्लोर के साथ साथ में, आपसे पूछा जाता है फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट, या पूछा जाता है थर्ड स्मॉलेस्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, एक और प्रॉब्लम लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी के साथ में पूछा जाता है nth लार्जेस्ट और nth स्मॉलेस्ट। ठीक, मैंने बोला था ना कि जैसे जैसे याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। तो ये भी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आपसे पूछा था nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, nth स्मॉलेस्ट, फाइंड आउट nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री। या फिर ये भी पूछा जा सकता है nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। बट एरे से करोगे तो आपको बिल्ड भी करना पड़ेगा, बिल्ड के लिए भी आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा, फिर उससे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट इजी है, काफ़ी इजी है। ठीक है। और इसके साथ साथ में nth स्मॉलेस्ट पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो काफ़ी इजी है। देखो अगर आपसे पूछा जाए थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट या सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो यहाँ से आप जाओगे तो लास्ट में जाओगे, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसके ऊपर सेकेंड स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट, और इसको कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर सकते हैं। इससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कितनी हो रही है, H+K टाइप की हो रही है। ठीक, बट आप चाहें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को H ही कर सकते हैं मैक्सिमम। कैसे कर सकते हो? क्योंकि आप अगर इस नोड के साथ में इसकी लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे इंप्लीमेंट करते, ऐड करते जाओ, जैसे कि हर नोड को क्रिएट करते वक्त एक और एलिमेंट यहाँ पे ले लो, एक और वेरिएबल ले लो। तो जस्ट लाइक एक वेरिएबल आपने यहाँ पे दे दिया, कोई भी वेरिएबल ले लो, स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टाइप का एक वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास में नोड जब क्रिएट करते हैं क्या क्या होता है, एक तो नोड होता है लेफ्ट, ठीक, एक डेटा होता है, ठीक, एक राइट होता है। तीन वेरिएबल होते हैं, तो एक और ले लो यहाँ पे स्मॉलेस्ट SM टाइप का। ठीक, तो ये वेरिएबल क्या करेगा, लेफ्ट स्मॉलेस्ट LSM कर लो, लेफ्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लेफ्ट स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे एंट्री करते जाओगे, ये वाला, इसके लेफ्ट में स्मॉलेस्ट कितने हैं, दो है, इसके लेफ्ट में स्मॉलेस्ट दो है, इसके लेफ्ट में स्मॉलेस्ट वन है, इसके लेफ्ट में स्मॉलेस्ट जीरो है। तो जैसे ही आप लेफ्ट करोगे, अब इसमें चेक करते हो कितने स्मॉलेस्ट, दो है। तो ये दो स्मॉलेस्ट है इसके, इसके पीछे की नीचे साइड में कितने हैं, एक स्मॉलेस्ट, तो यानी कि एक मिल गया, तो यही वाला, क्योंकि इसके नीचे एक ही स्मॉलेस्ट है ना, सेकंड स्मॉलेस्ट आपको चाहिए था, तो सेकंड स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप कॉम्प्लेक्सिटी को कम भी कर सकते हो। कितना ईजी है ना? तो इसके लिए आप अगर सारी चीज़ें देखना चाहोगे तो ये जो बाइनरी ट्री है, ए सॉरी, ट्री सेट है, उसको आप यूज कर सकते हो। ट्री सेट जावा में ये सारी फंक्शनलिटी को रखता है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मेन मेथड हमने कहाँ बनाया था, लास्ट लेक्चर में।
ये है, यहाँ पे आप जाओगे ट्री सेट यूज करोगे यूटिल का। मान लो आपके पास में स्ट्रिंग था, ठीक। ट्री सेट भी यूज कर सकते हो, की वैल्यू के लिए ट्री मैप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन सेम ही होगा। यहाँ पे सर्च भी कर लो, रेड, पहली बार में मिल गया। नहीं, रेड ब्लैक, पूरा सर्च करो फिर। कहाँ गया यार। है भी कि कहाँ इसमें दिया भी है कि नहीं। चलो कोई नहीं, एक तरफ से देखना पड़ेगा। ट्री मैप, इसके बाद अच्छा ट्री मैप को देखते हैं, क्योंकि ये इसका इसमें इंटरनल दिया नहीं होगा। क्योंकि ट्री सेट मैंने बताया ना, मैप को ही यूज करता है ऑलरेडी से। दोनों सेम ही है। और इसका पेरेंट मैप है, तो मैप में देखना पड़ेगा। मैप करके एक बार और देख लेता हूँ। रेड ब्लैक नहीं है, ठीक। चलो ट्री सर्टिफिकेट ट्री मैप कर लेते हैं। देखो, रेड ब्लैक ट्री बेस्ड लिंक नेविगेबल मैप, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेड ब्लैक ट्री को ही इम्प्लीमेंट करता है इंटरनली। तो जो भी फीचर अगर ये इम्प्लीमेंट करता है तो सेट भी करता है, ठीक है। क्योंकि सेट इंटरनली मैप के ही मैप को ही यूज करता है मैनेज करने के लिए, ठीक। इसलिए उसमें रेड ब्लैक ट्री बताया नहीं था, है ना। अब इसकी लाइब्रेरी अगर देखनी है सेट में तो आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक। यहाँ पे जाओगे ट्री डॉट एड, देखो सील यहाँ पे मिल गया आपको। फ्लोर भी मिलेगा, फ्लोर भी है, ठीक है। मिन भी होगा। मिन नहीं है क्या। मिनिमम होगा, बट कंपेरेटर का यूज करना पड़ेगा मिनिमम के लिए, ठीक है। मिन भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट और लास्ट से। फर्स्ट और लास्ट से आप मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, फ्लोर, ईच, गेट। क्योंकि आप सॉर्ट कर वो कंपरेटर इसमें स्पाइस ट्री से सॉर्टेड होता है ना। तो मिल जाएगा पोल फर्स्ट पोल लास्ट करके होगा, ऐसा करके रिटर्न ऑल पोल लास्ट पोल फर्स्ट, ठीक है। या लास्ट फर्स्ट। इस तरीके से आप मिनिमम मैक्सिमम फ्लोर सील सारा कुछ इजीली निकाल सकते हो इसमें से। ओके। तो और थोड़ा बताता हूँ इसमें क्या क्या बच गया है। तो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च में मैंने बताया एवीएल ट्री। एवीएल ट्री आपको पहले बताता हूँ, ठीक। तो एवीएल ट्री में अगर मैं बात करूँ, सो व्हाट इज द एवीएल ट्री। AVL tree is self-balancing binary search tree only. Okay. What are the rule to create a AVL search tree? AVL search tree. इसके what are the rules here? Same rules. Actually, how it balance how this AVL tree balanced a binary search tree. हाउ मतलब ये कैसे करता है, ठीक है। तो ये बैलेंस कैसे करता है, इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपको देखो, बैलेंस बाइनरी सर्च और कितना बैलेंस कर पाता है, कितनी कैपेसिटी है। ये एक्चुअली हाइट को हाइट को लॉग तक मैनेज करता है। वर्स्ट केस में हाइट को लॉग तक लेके आता है। लॉग तक मतलब यही आपकी रिक्वायरमेंट है। हाइट को लॉग अगर रखते हो तो आपकी सर्च सारी कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग रिलेशन सारा कुछ लॉग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है एवीएल ट्री के थ्रू, ठीक है। बट ये कैसे बैलेंस करता है, ये चीज़ मुझे देखना थोड़ा। एवीएल ट्री के व्हाट आर द रूल्स,
हाउ इट्स क्रिएट अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो जैसे कि एग्जांपल में मैं लेता हूँ, हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ज़्यादा नहीं लेंगे हालांकि, क्योंकि मुझे सारे रूल्स अप्लाई करने हैं इसमें। तो अगर आपके इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, देन यू हैव टू, नाउ लेट्स क्रिएट binary search tree. So you will create binary search tree by adding 1, then you will add 2, okay, then you will add, and together you have to compare left and right, height and right। ये रूल जो है वो सेम हर जगह सेम अप्लाई होगा, ठीक है। लेफ्ट हाइट और राइट हाइट ये आपको अप्लाई करना होगा, ठीक। दैट शुड बी लेस इक्वल टू 1 ओनली। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट हाइट 0 है, राइट हाइट 1 है, इट मीन्स दिस इज बैलेंस्ड ओनली। जैसे ही आपने एस आपने यहाँ पे 3 ऐड किया, हाइट कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन इज नॉट फॉलोड, इट मीन्स यू हैव टू बैलेंस नाउ। तो इस केस में इसको बोलते हैं एक्चुअली, ये क्योंकि राइट राइट है, ठीक, राइट राइट है। राइट राइट मीन्स, राइट राइट मीन्स यहाँ पे एलिमेंट जो दोनों नोट्स जो हैं आपके, ये सब ट्री और ये पहले फर्स्ट सब, दिस इज ट्री, दिस इज सब ट्री, दिस इज सब ट्री। थर्ड ये वाली जो सब ट्री है एक्चुअली इसके राइट में है, ठीक है। और ये सब ट्री ये भी राइट में है, इसी वजह से इसको आर आर बोल सकते हो, ठीक है, आर आर रूल। तो अगर इस टाइप से है तो हाउ यू विल बैलेंस दियर, you have to, because you are keep checking the height, left height and right height by using this formula। जैसे जो एक एक एलिमेंट ऐड करोगे हाइट को तुरंत कंपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक यहाँ पे ऐड किया, तुरंत हाइट चेक करी इसकी हाइट, क्योंकि इस पे ऐड चेक किया, फिर इसके बाद में इसको ऐड किया तो इसकी तुरंत हाइट चेक करी, तो यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड हो गई। तो इसका ये जैसे ही अनबैलेंस हो गया तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं, आपका आप सोचोगे क्योंकि हमें बैलेंस बनाना है तो इसका मतलब हम कई तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो, आपने क्या करना है, दो जो है हमारा, आपको ये याद रखना है कि ऐसे बैलेंस करना है, लेफ्ट वाला स्मॉल होना चाहिए, राइट वाला लार्जर होना चाहिए, ठीक। आप ऐसे अगर करना चाहोगे, दो यहाँ डाल दिया, तीन यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए रूल अप्लाई करना होगा। जब भी आपको आर आर वाला कभी केस मिलता है, आर आर वाला, तो उस केस में आपको क्या कहते हैं, कौन सा आपको रोटेशन करना है, ठीक। रोटेशंस आपको इसमें करने होते हैं। क्या करना होता है, रोटेशन। यही इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। कॉन्स में भी आ जाता है कि इसमें लॉट्स ऑफ एक्चुअली रोटेशन ऑपरेशन करने पड़ते हैं, इसी वजह से ये कम यूजफुल है, ठीक है। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेशंस हो जाते हैं, कैलकुलेशंस हो जाते हैं, जिस वजह से ये उतना जब आपके पास में लार्जर डेटा है उस केस में ये काफ़ी यूजफुल नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन होगा, लेफ्ट रोटेशन या राइट रोटेशन, ठीक। बट इस केस में सिर्फ एक ही रोटेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन कितने रोटेशन की, सिर्फ एक रोटेशन की। तो आप यहाँ पे इसको लेफ्ट रोटेट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, दो आ जाएगा और ये लेफ्ट रोटेट की तरफ वन आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। तो ये दो के लेफ्ट में स्मॉल हो गया, राइट में लार्जर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से ये आर आर रूल हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको ऐड करना था, मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में था, 3, 2, 1 था, ठीक। तो आपकी ट्री कैसे बनती, 3 बनती, 2 एंड 1। इस टाइप से अगर ट्री बनी हुई होती तो कैसे क्या होता, तो ये कौन सा रूल होता है, एल एल रूल होता। यहाँ पे आर आर था तो आपने लेफ्ट रोटेट किया। अगर एल एल टाइप का होता कंसेप्ट तो उसमें क्या होता, उसका मतलब राइट रोटेट करना पड़ता आपको, ठीक। यही इसके रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो राइट रोटेट कहाँ करोगे, मिडिल एलिमेंट, यहाँ से आपका अनबैलेंस हुआ ना, इसमें से जैसे ही आपने लेफ्ट में ऐड किया तो तुरंत अनबैलेंस हो गया, इसका मतलब राइट और रोटेट कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, दो इधर हो जाएगा, वन इधर हो जाएगा और थ्री इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बैलेंस कर लोगे। तीसरा रूल, फोर रूल होते हैं, चार रूल होते हैं इसके, ठीक है। तीसरा और क्या केस बन सकता है आपके पास में,
मान लो आपने आपके पास में ये एक ट्री बनाई, आपकी ट्री थी, जिसमें कि आगे टॉप में बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास में ट्री थी जिसमें वन एलिमेंट था। आपने एक, मान लो राइट में एक एलिमेंट ऐड किया, तीन, मान लो फाइव, ठीक। पर उसके लेफ्ट में आपने फिर ऐड कर दिया थ्री। इस वजह से आपकी ट्री अनबैलेंस्ड होगी। वन, फाइव और थ्री। वन देखो राइट में है चूंकि तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो ये स्मॉलर होगी फाइव से। तो ये अब भी ट्री हमारी अनबैलेंस्ड होगी। इट मीन्स यू हैव टू बैलेंस नाउ। हाउ यू विल बैलेंस? चाहे तो आप दिमाग का दही कर लो या फिर आप रूल अप्लाई कर लो। ये कौन सा रूल है? राइट, आर एल, आर एल वाला है, आर एल वाला है, राइट देन लेफ्ट है। राइट लेफ्ट का रूल है, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन, रोटेशन ऑपरेशन करने पड़ेंगे आपको। कौन कौन से? पहला ऑपरेशन तो आपको करना पड़ेगा, इसको एक लाइन में करना है, सीधा करना है, जब पुराने वाले पे स्टेप है, आइदर आपको आर में लाना है, या आर यू हैव टू कम बैक टू एल एल, एल एल टाइप ट्री। तो आपको यहाँ पे चूंकि राइट है पहला नोट, तो इसको आर में ला सकते हो और एल एल में नहीं ला सकते हो, ठीक। तो आर में कैसे लाओगे? आपको तुरंत लेफ्ट राइट रोटेशन करना है। तो आपने यहाँ पे आर लिख दिया और यहाँ पे राइट रोटेट कर दिया, तो वन हो गया, थ्री हो गया, और ये फाइव हो गया, ठीक। इसके बाद में अब ये वाला केस हो गया। कौन सा केस है? आर केस। आर में लेफ्ट रोटेशन करना होता है, तो अब लेफ्ट रोटेट कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लेफ्ट रोटेट कर दोगे, तो लेफ्ट रोटेट कर दोगे मतलब आर एल, राइट एंड देन लेफ्ट रोटेट। ये क्या बनेगा? थ्री रहेगा, वन आ जाएगा, और ये फाइव हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास में केस होता, एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लो फाइव होता, देन फाइव के बाद में चूंकि ये स्मॉल होगा, यानी कि लेट्स से यू हैव सम वन, देन यू हैव सम थ्री। इस प्रकार से होता है। पहले लेफ्ट है देन राइट है, लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट राइट। तो आपको ऑपरेशन क्या करना होगा? पहले तो आपको उसको सीधा लेफ्ट, लेफ्ट में यानी कि एल एल में करना है, एल एल में करना है, लेफ्ट लेफ्ट में करना है, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट में करने के लिए आपको लेफ्ट वाला रोटेशन करना होगा, ठीक। तो लेफ्ट रोटेट कर दो, क्या बन जाएगा लेफ्ट रोटेट से? फाइव, थ्री, वन। देन व्हाट विल डू? राइट, राइट रोटेशन करोगे। राइट रोटेशन मतलब इसको राइट में कर दोगे, थ्री, फाइव एंड देन वन। इस तरीके से आप इसको बैलेंस करोगे। यही एवियल ट्री है एक्चुअली, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। भी कंप्लीट हो चुका है, आपको तो इतना ही पढ़ना था, ठीक। आप अपने मन से चाहे तो पढ़ सकते हो, बाकी अब जब ट्री बनाओगे, जब भी आप ट्री बनाओगे तो तुरंत आपको ए, कैसे करोगे? थोड़ा बहुत मैं हिंट, नोड जो है आपका, जब नोड लोगे, क्योंकि आप स्टार्ट से ही बना रहे हो, ठीक। आप यहाँ पे चेक नहीं करना है कि ट्री बैलेंस है या नहीं है। यू आर क्रिएटिंग सेल्फ बैलेंसिंग बाय नेसेसिटी। इट मीन्स you have to think from the beginning only. So and you have to track actually height at every level of the node. Then how you can do this thing? You can do by adding one more variable into node. कैसे? आपने के पास में जब नोड क्रिएट करते हैं, हम लोग नोड क्लास क्रिएट करते हैं, वहाँ पे लेफ्ट वेरिएबल लेते हैं, राइट डेटा लेते हैं, राइट लेते हैं। आप एक और ले लो, हाइट क्या कहते हैं उसको, कुछ भी ले लो, सी एफ को सी एफ करके या सी एच करके, ठीक। हाइट डिफरेंस ले लो, ठीक, एच डी। तो हाइट डिफरेंस करके एक वेरिएबल ले लो।
तो ये 4 वेरिएबल ले लोगे जब हाइट डिफरेंस जो है, पहला नोड ऐड करोगे तो हाइट डिफरेंस क्या आएगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ पे इसके साथ में एक नोड जब क्रिएट होगा तो उसमें क्या रहेगा, डेटा रहेगा, डेटा मान लो 1 है, कॉमा जीरो। इसी प्रकार से जैसे आपने दूसरा नोड ऐड किया, 5 ऐड किया, तो 5 कॉमा, क्योंकि ऊपर जीरो था तो हाइट, अब यहाँ पे एक और नोड ऐड किया, इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जैसे ही आपने अब यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पे लेफ्ट में ऐड किया एलिमेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइट कितनी थी, 1 थी। और यहाँ पे हाइट कितनी थी इसकी, नहीं हाइट ऊपर बढ़ाओगे, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, हाइट तो ऊपर वाली की चेंज, मैं जैसे ही आपने यहाँ पे नोड ऐड किया तुरंत इसकी हाइट बढ़ा दोगे। अब इसकी हाइट 1 होगी, इसकी तो जीरो ही रहेगी, ठीक। फिर जैसे ही आपके इसके लेफ्ट में कुछ ऐड करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट, इसकी हाइट तो मान लो आपने 3 ऐड किया था, इसकी हाइट तो जीरो रहेगी, बट इसकी हाइट तुरंत आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके पाथ में जिस सभी की हाइट लगभग बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपने, अब ऐसे ही नहीं बढ़ जाएगी एक्चुअली, यहाँ पे हाइट आपने जैसे ही चेक किया, इसकी हाइट यहाँ पे है, और अभी आप चूंकि राइट में ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब लेफ्ट में चूंकि पहले आप क्रिएट करोगे फिर राइट में क्रिएट करोगे, या राइट में पहले क्रिएट कर रहे हो, अब लेफ्ट में जैसे ही आप ऐड करोगे, जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ भी ऐड किया, मान लो एक नोड ऐड कर दिया, क्या हम ऐड कर सकते हो, जीरो ऐड कर पाओगे और कुछ नहीं, 0,0, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही आपने एक लेफ्ट में नोड ऐड किया, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइट क्या थी पहले, ये राइट हाइट थी ना हमारी, तो यहाँ पे हमारी 2 थी, तो हाइट डिफरेंस हमारा क्या था, 2 था। जैसे ही लेफ्ट में किया तो हाइट डिफरेंस हमारा एक तरीके से कम हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज करके हुए चलोगे, अभी पूरा नहीं बता सकते हैं क्योंकि लेक्चर वैसे भी बहुत बड़ा हो चुका है, और जो कमियाँ होती है वो कोड करते वक्त वैसे भी निकल जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, आपको अच्छा लगा वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में रेड ब्लैक ट्री और एक और जो ट्री बचा हुआ है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बाय।